السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی بندہ اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرے: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اللہ اس دعوت تامہ کاملہ اور اس صلاۃ قائمہ و دائمہ کے رب، یعنی اے وہ اللہ جس کے لیے اور جس کے حکم سے یہ اذان اور یہ نماز ہے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ کے خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر سرفراز فرما جس کا تو نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ متحدہ ضلع نظام آباد بونال گاؤں کی عید کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ ریاستی مشیر محمد علی شبیر نے کاماریڈی بونال تقریب میں شرکت کرتے ہوئے برادران کو دی مبارکباد۔ MLC 3 مار مالانا دفتر پر جاگرتی قائدین کی جانب سے حملہ کرنے کا واقعہ سنسنی خیز بن گیا۔ نظام آباد گاؤں کی عید کے لیے کیے گئے انتظامات کا CP سائی چیتنیا نے لیا جائزہ۔ ریاست کے کسانوں کو محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنائی، آنے والے 3 دنوں تک بارش ہونے کا امکان۔ متنازع فلم ادے پور فائلز ملک کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ، جمعیت علماء ارشد مدنی نرمل کی نفرت انگیز فلم کے خلاف کلکٹر اور SP کو ایک تحریری یادداشت کی حوالے۔ اب بڑھتی ہے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کیو نیوز دفتر میں احتجاج کے لیے پہنچنے والے جاگرتی کارکنوں پر 3 مار مالانا کے گن مین کی ہوائی فائرنگ۔ کیو نیوز دفتر میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب جاگرتی تنظیم سے وابستہ چند کارکن 3 مار مالانا اصل نام چنتا پنڈو نوین کے خلاف احتجاج کے لیے پہنچے۔ ان کارکنانوں کا کہنا ہے کہ مالانا نے نامناسب تبصرے کیے ہیں جس کے خلاف وہ پرامن مظاہرہ کرنے آئے تھے۔ اسی دوران مالانا کے ساتھ موجود گن مین نے اچانک بندوق نکال کر ہوائی فائرنگ کی۔ 5 راؤنڈ فائرنگ کرنے کی اطلاع ہے جس سے علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ آس پاس کے لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر حالات کو قابو میں کیا اور گن مین کو حراست میں لے لیا ہے۔ معاملے کی جانچ جاری ہے۔ جاگرتی کارکنانوں کا مطالبہ ہے کہ 3 مار مالانا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، جبکہ مالانا کے حامیوں کی جانب سے تاحال کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ متنازع فلم ادے پور فائلز ملک کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ، جمعیت علماء ارشد مدنی نرمل کی نفرت انگیز فلم کے خلاف کلکٹر اور SP کو ایک تحریری یادداشت کی حوالے۔
जमीयत उलमा अरशद मदनी निर्मल के जिम्मेदारान का एक वफद मुफ्ती सैयद कलीम उद्दीन क़ासमी सदर जमीयत उलमा निर्मल की क़ियादत में एक तहरीरी याददाश्त जिला एसपी जान की शर्मिला कलेक्टर अभिलाषा अभिमन्यु को पेश किया। इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए मुफ्ती अब्दुल अलीम फैसल क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ने कहा कि उदयपुर फाइल्स एक इंतहाई खतरनाक नफरत अंगेज मुल्क के ताने बाने को बिखरने वाली फिल्म है। इस फिल्म में इस्लामी तशक्कुस को मजरू करने की नापाक कोशिश की गई है। मुतनाज़ा फिल्म में इस्लाम के हकीकी चेहरे को छुपा दिया गया और इसकी गलत तस्वीर पेश करने की एक घिनौनी कोशिश की गई। मदारिस दीने के किरदार को इंतहाई अहानत आमेज तरीके पर पेश किया गया। फिल्म बनाने वालों ने ये भी नहीं सोचा कि इससे मुस्लिम कम्युनिटी की दिल आज़ादी होगी। फिल्म ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी अमन को भी खतरे में डाल दिया। मुतनाज़ा फिल्म ने नफरत अंगेज फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा महसूस होता है कि इस मुल्क में दौलत और शोहरत हासिल करने का वाहिद रास्ता सिर्फ इस्लाम और मुसलमान ही बाकी रह गया हो। इन्होंने कहा कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से सब ही वाकिफ है। इस वक्त मुल्क को प्यार, मोहब्बत, अमन, सलामती बांटने और एकजहती पैदा करने की ज़रूरत है। अगर कोई हकीकी मुहिब्बे वतन है तो ऐसी फिल्में बनाए जिससे समाज में सुधार आए, मोहब्बत परवान चढ़े, दूरियां खत्म हो और नज़दीकियां बढ़े। तमाम मजहब के लोग मुल्क की तामीर व तरक्की में शाना बशाना आगे बढ़े। इन्होंने कहा कि फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने अपने हकीर मुफादात के खातिर मुल्क की अमन और सलामती को दांव पर लगा दिया। ऐसी नफरत पर मबनी फिल्में समाज के लिए जहर कातिल होने का इजहार किया। फाइल्स के सिलसिले में आया है। हम दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले का खैर मुक़दम करते हैं और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम की काबिशों को कोशिशों को सराहते हैं और हम उनके हक़ में दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा हिंद को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उन्होंने इस फिल्म के ख़िलाफ़ में जैसे ही हज़रत मदनी दामत बरकातुहुम को इस बात का इल्म हुआ कि उदयपुर फाइल्स फिल्म जो बनाई गई है, इस फिल्म के अंदर मुसलमानों की तौहीन की गई है, इस्लाम की तौहीन की गई है और ख़ासकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा जो उम्महातुल मोमिनीन है, इनकी इज़्ज़त पर और इनकी इस्मत पर हमला किया गया। तो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया और दिल्ली हाई कोर्ट से जो मुकदमा आया, वहाँ से जो फ़ैसला आया वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए खुशाइंद है। वहाँ से जो फ़ैसला आया कि इस फिल्म को बैन किया जाए, लिहाजा हम दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले का खैर मक़दम करते हैं। और दूसरी बात, हम हुकूमत हिंद से ये मुतालिबा करते हैं कि इस फिल्म के लिए इस फिल्म का सरी सिरे से बाइकाट किया जाए और हमेशा के लिए बाइकाट किया जाए और इस तरीके की फ़िल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, इनके ख़िलाफ़ में ऐसा सख्त कानून बनाए ताकि इन्हें पता चल जाए कि इस तरीके की फ़िल्में बनाने पर हमारे साथ क्या मामला पेश आ सकता है। लिहाजा फिल्म के सिर्फ बैन करने से काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हम इनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा भी करते हैं। एमएसओ और डॉक्टर नवीन के इश्तराक से अवाम के लिए मुफ्त आंखों के चेकअप कैंप का इनेकाद। अवाम की कसीर तादाद ने किया इस कैंप से इस्तिफादा। आज शहर निज़ामाबाद के गुंजान आबादी वाले इलाके मालापल्ली मुजाहिद नगर में मौजूद पब्लिक हाई स्कूल में मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निज़ामाबाद व डॉक्टर नवीन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इश्तराक से एक कामयाब मुफ्त आँखों का मुआयना कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तकरीबन 150 से ज्यादा अफराद ने इस्तिफादा हासिल करते हुए एमएसओ व डॉक्टर्स की खिदमत की सताइश की। इस मौके पर एमएसओ जिम्मेदार मोहम्मद आरिफ हुसैन, शेख आमिर, डॉक्टर इरफान, एडवोकेट जीशान रजवी, शेख इमरान, शेख गफ्फार, असलम चौस व दीगर मौजूद थे। कोरटला चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शजरकारी मुहिम का किया गया एहतमाम। जमात इस्लामी हिंद की चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO जो मुल्क गिर सतह पर जुलाई 1 माह शजरकारी मुहिम बाउनवान मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ चला रही मुहिम के दौरान सारे मुल्क में 10 लाख 1 मिलियन पौधे लगाकर मुल्क से फिजाई आलूदगी को दूर करना चाहती है। इस ज़मन में शहर कोरटला में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अंजाम दिए जा रहे हैं। बच्चों के जरिए मुख्तलिफ मुकामात पर शजरकारी की जा रही है। आज शहर कोरटला में CIO की जानिब से शजरकारी शोरबेदारी के ज़मन में एक अजीमुशान रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। बादअज़ा जमात इस्लामी कोरटला के कॉन्फ्रेंस हॉल में CIO की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसको CIO के जिम्मेदार
داران نے مخاطب کرتے ہوئے شجرکاری کی دنیاوی اور دینی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ درختوں سے ہمیں آکسیجن فراہم ہوتی ہے۔ اس موقع پر الیاس احمد خان امیر مقامی جماعت اسلامی کوٹلہ، شاہین بیگم مقامی ناظمہ، عزمی تبسم کنوینر شجرکاری مہم کے علاوہ آمنہ بیگم، قنصہ نشاط، سمیہ فردوس، اسرا فردوس، ساجدہ بیگم، نکھت بیگم، رحمت بیگم، عرشیہ بیگم، شاکرہ بیگم، عرفانہ عارف خان، محمد مجاہد، عطاء الرحمان خان موجود تھے۔ انہوں نے ریلی کی انتظامات میں اہم رول ادا کیا۔ جماعت اسلامی شاخ احمد پورہ کالونی کی جانب سے تنظیمی اجتماع کا کامیاب انعقاد، مختلف امور پر کیا گیا تبادلہ خیال۔ جماعت اسلامی احمد پورہ ارکان و کارکنان کا تنظیمی اجتماع جناب عبدالرحیم صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی کی نگرانی میں مسجد مصطفیٰ پر مولانا مسعود بیگ ندوی امام و خطیب مسجد مصطفیٰ کے درس القرآن سے میں بعد نماز فجر انعقاد عمل میں آیا۔ عبدالرحیم صاحب امیر مقامی نے ابتدائی کلمات ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر کام اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، اسلامی تعلیمات عمل پیرا ہوئے ہم دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب عبدالستار امجد صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی یعقوب پورہ نے میقاتی پالیسی پروگرام پر عمل آوری کے تقاضے پر خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ملک کے موجودہ حالات میں عوام کی رائے عامہ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسلام تمام انسانیت کا نجات دہندہ ہے۔ ہم اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں قولی و عملی نمونہ پیش کریں۔ پروگرام میں محمد انور خان صاحب، عبدالعلیم صاحب، خواجہ نصیر الدین صاحب، ضیاء الدین صاحب، ممتاز صاحب، عبدالکریم صاحب، رحمت اللہ بیگ صاحب، مالک ذاکر صاحب، عبدالمالک شارق صاحب، عبدالمنان صاحب، اقبال احمد صاحب، منصور صاحب، عبید خان صاحب، اسد حافظ صاحب، عبدالحفیظ صاحب، دیگر ارکان و کارکنان موجود تھے۔ دعا پر اجتماع کا اختتام عمل میں آیا۔ آج مسجد مصطفیٰ میں جماعت اسلامی حلقہ احمد پورہ کی جانب سے ایک تنظیمی نشست منعقد ہوئی، جس میں ہم نے 2 سال کی میقاتی منصوبہ کی۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی احمد پورہ کی جانب سے آئندہ 2 سال میں کچھ کام طے کیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے 2 سال میں کیے جائیں گے، جو دعوت، اصلاح، تزکیہ اور خدمت خلق سے جو کہ بنیادی و لازمی کام کے مندرجہ لاتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے الخیر کمپیوٹر سینٹر مسجد رحیم میں چلایا جاتا ہے، اس کے علاوہ سلائی سینٹر، خدمت خلق کے کام، مہندی ڈیزائن کے کام اور صباحی مدارس بھی چلائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی احمد پورہ کی جانب سے ہفتے وار اجتماعات 5 مقامات پر ہوتے ہیں اور خواتین کی جانب سے تقریباً 16 مقامات پر ہفتے واری اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ حکومت کی انتخابی منشور میں دیے گئے وعدوں کے مطابق BC طبقے کے لیے 42% تحفظات کا نفاذ عمل میں لانے سے آلور منڈل کے کانگریس قائدین نے جشن کا کیا انعقاد۔ آلور منڈل کے مقام پر کانگریس پارٹی منڈل MVJ کے زیر اہتمام اندرما مستحقین کے ہمراہ ریاست تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، TPCC چیف MLC مہیش کمار گوڈ کے علاوہ آرمور حلقہ کانگریس پارٹی انچارج وینے ریڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلاتے ہوئے دل کی گہرائی اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر وجے نے کہا کہ کانگریس حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد انتخابات کے موقع پر دیے گئے وعدوں کو فوری طور پر عملی جامہ پہناتے ہوئے ہر ایک اسکیم کے ثمرات سے ہر ایک ضرورت مند مستحقین کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ حکومت کی اسکیمات کو عوام تک پہنچاتے ہوئے اسکیم کے فائدے کے تعلق سے آگاہی کرتے ہوئے اسکیم کے ثمرات مستفید کیا جا رہا ہے۔ وہ اس کے علاوہ سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب عوام ذاتی گھر کے خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے مقصد کے تحت کئی اہل مستحق افراد خاندان کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں اندرما گھر کی منظوری عمل میں لائی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آلور منڈل میں 511 مستحقین کو اندرما مکانات کی منظوری عمل میں لائی جا رہی ہے، جس میں 234 گھروں گراؤنڈنگ مکمل ہوئی ہے اور 46 افراد کو پہلی قسط کے طور پر 1 لاکھ روپے فنڈز کی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اور اس کے علاوہ کانگریس کی جانب سے انتخابات کے موقع پر دیے گئے وعدے کے مطابق BC طبقے کے تحفظات کو ریاستی کابینہ میں منظوری دیتے ہوئے آرڈیننس کی اجرائی عمل میں لائے جانے کے باعث BC طبقے تحفظات کا نفاذ عمل میں لانے کی وجہ سے BC برادری حکومت کی تئیں کافی مطمئن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت کے دور اقتدار میں BC طبقے کی ترقی و تحفظات میں اضافے پر کسی بھی قسم کی توجہ نہیں دی گئی، لیکن کانگریس حکومت برسر اقتدار پر آنے کے بعد BC طبقے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ان سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے لیے تیقن دینے کے علاوہ BC طبقے کے لیے 42% تحفظات کا نفاذ عمل میں لایا گیا، جو کہ صرف کانگریس حکومت سے ممکن ہونے کا انہوں نے اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہر ایک کارکنان عنقریب
मुनक्किद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों को भारी अक्सरात से फतेह दिलाने के लिए तैयार हो जाए। इन्होंने कहा कि हुकूमत इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादे पर अमल आवारी करते हुए हर एक मुस्तहिकीन को राशन कार्ड के अलावा इंदिरा घरों की फरहमी अमल में लाते हुए हकीकी अफराद खानदान को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। बादजा इन्होंने हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादे को पूरा करते हुए हर एक के साथ इंसाफ फराहम करने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस हुकूमत होने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने मुस्तहिकीन की मदद करते हुए सहारा देने वाले इंचार्ज वेनिर रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में डीसीसी साबिका जनरल सेक्रेटरी डी पोशेट्टी, वाईएस मल्ला रेड्डी, नवनीत, उदय, संजू, गंगा रेड्डी, श्रीनिवास, साई, विनोद, भरत, महेश, साबिका सरपंच चिन्नैया के अलावा मुस्तहिकीन ने शिरकत की। कांग्रेस हुकूमत कामारेड्डी डिक्लेरेशन के तहत दिए गए वादे पर अमलावारी करने का रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इजहार। डॉक्टर भूपत रेड्डी धरपल्ली मंडल के मुकाम पर तूफानी दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए इन्होंने हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से शुरू किए गए इंदिरा घर नामी स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद खानदान की जानिब से तामीर किए जाने वाले इंदिरा घर की तामीरी कामों का जायजा लेते हुए हुकूमत की जानिब से कस्तों के तौर पर अदायगी अमल में लाए जाने वाले बिलों के बारे में आगाही फराहम की और इसके अलावा दमनपेट देहात में मनादिर की इफ्तिताह तकरीब में शिरकत की। वहाँ मौजूद प्रगौड़ सिंह में बीजेपी ख्वाहिदीन की कसीर तादाद के अलावा मुख्तलिफ ज़ातों के बिरादरान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया गया। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक हुकूमत की जानिब से रोबे अमल में लाए जाने वाले स्कीमात के समरात से हर एक तबके के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के अलावा हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए स्कीमों के बारे में शोरबेदारी फरहम की। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से रोबे अमल में लाई जाने वाली मुनफरिद स्कीमात को तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। वो इसी तरह से हुकूमत के इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादे के मुताबिक बीसी बिरादरी को 42% तोफ़ुज़ात का निफाज अमल में लाने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कारकुनान अपनी एहतजाजी जिम्मेदारी के तहत खुसूसी दिलचस्पी के तहत पार्टी को मुस्तहकीम करने की कोशिश करने वालों को पार्टी में खुसूसी अहमियत देते हुए इनकी जानिब से फरहम करदा खिदमात एतराफ़ इनको मुनासिब अहदे पर फायज करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि दमन्ना पेट में हकीकी गरीब अफराद खानदान की निशानदाही करते हुए इन्हें इंदिरा घर स्कीम के तहत मकानात की तामीर अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में धरपल्ली में कांग्रेस पार्टी ख्वाहिदीन व कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। गांव की ईद शोभा यात्रा का इनेकाद अमल में लाने वाले रूट मैप का पुलिस कमिश्नर पीसा चैतन्य ने लिया जायजा। गांव की ईद शोभा यात्रा से मुताल्लिका रोड मैप प्रोग्राम रघुनाथ मंदिर खिला चौरस्ते से शुरू होते हुए विवेकानंदा चौरस्ते, लक्ष्मी मेडिकल, गाजुलपेट, बड़ा बाजार, गोल हनुमान, फुलांग चौरस्ता, विनायक नगर, आर्या नगर, दुब्बा व दीगर इलाकों का सीपी साई चैतन्य ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गाँव की ईद के पेश नजर खुसूसी बंदोबस्त के अलावा कड़ी निगरानी रखी गई है। इन्होंने आवाम को महकमे पुलिस से ताउन करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्री शाइलम, श्री CI श्रीनिवास राज, गाँव की ईद से मुताल्लिका खुसूसी अराकीन आर गंगाराम, जी लिंगम, राजेंद्र, विजय, इससे मुताल्लिका अहदेदारों ने शिरकत की। ఊర పండుగ శుభాకాంక్షలు। ఈ మన ఊర పండుగ సందర్భంగా కిలారామాలయం నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో వెళ్తూ ఉంటే మొత్తం 9 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఐడెంటిఫై చేసి అన్నిటికీ బందోబస్తు వేయడం జరిగింది। అట్లానే సరీ ఉత్సవాలు కూడా చాలా చోట్ల జరుగుతూ ఉంటాయి। ఇక్కడ మనకి వివేకానంద స్టాట్యూలో పెద్ద జరుగుతూ ఉంటుంది। తర్వాత మనకి దుబ్బా దగ్గర అట్లా 2-3 చోట్ల ఉన్నాయి। వాటికి కూడా అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది। అట్లానే వీళ్ళ మన ఎవరైతే ఆర్గనైజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు మొత్తం నిన్న మా ఆఫీసర్స్ అందరూ రూట్ మ్యాప్ వేయడం జరిగింది। సో అందరికీ ఉన్న ప్రజలందరికీ ఈ ఊర పండుగ ఉత్సవ శుభాకాంక్షలు మళ్ళీ తెలుపుకుంటూ అమ్మవారిని शहर निजामाबाद की 44वीं कौमी शहरा पर सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह से है। चेन्नई से हरियाणा जाने वाली लारी डिचपली नागपुर गेट के पास रोकने वाली लारी को पीछे से आने वाले कंटेनर टकराने की वजह से पेश आने वाले हादसे में कंटेनर में सफर करने वाला क्लीनर बरसर मौके फौत हो गया और जख्मी कंटेनर ड्राइवर को महकमे पुलिस ने हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वो इस पर तहकीकात अमल में लाने का पुलिस ने इजहार किया। शहर के डिवीजन नंबर 45 श्रीनगर कॉलोनी में वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर-ए-तमाम बोनाल गांव की ईद का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया।
शहर के डिवीजन नंबर 45 श्रीनगर कॉलोनी में वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम बोनाल गांव की ईद का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस बोनाल गांव की ईद को खेत खलियान और आवाम को किसी भी किस्म की मुतादी मर्ज से निजात दिलाने के लिए इस गांव की ईद को मनाते हुए शहर मुजाफात में वाकई मंदिरों में देवताओं की मूर्तियों की तंसीब अमल में लाते हुए इस बोनाल गाँव की ईद का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जाता है। इस मौके पर कॉर्पोरेट अकुला हिमालता श्रीनिवास ने कहा कि गाँव की ईद हर साल की तरह इस साल भी बगैर किसी जात पात व मजहबी तफरीक के साथ सब मुतहिद होकर बोनाल गांव की ईद का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। సంవత్సరాల నుంచి జరుపుతున్న పండుగ ఈ ఊర పండుగ। దీనికి సర్వ సమాజ్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం ఈ పండుగను జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా జరుగుతున్నది। బండారు కార్యక్రమంతో మొదలు మంగళవారం రోజు బండారు కార్యక్రమాన్ని చేసి చిన్నపల్లి గడిలో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి నిజామాబాద్లోని అన్ని కుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో పట్టీని కట్టి అందరి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఊర పండుగ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా జరుగుతున్నది। ఇక్కడ నిజామాబాద్లో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ మామిడి దుంగలతో అమ్మవార్లను తయారు చేయడము తెలంగాణలో కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాదు ఎక్కడ కూడా ఇట్లాంటి ఊరేగింపు అనేది జరగదు। మామిడి దుంగలతో అమ్మవార్ల విగ్రహాలను తయారు చేయడం ఆనవాయితీగా జరుగుతున్నది। MLC 3 मार मालना दफ्तर पर जागृति क़ायदीन की जानिब से हमला करने वाला वाक़या सनसनीखेज़ बन गया। हैदराबाद के माबिड़ीपल्ली में वाक़ई मल्लन्ना न्यूज़ ऑफिस पर तेलंगाना जागृति कारकुनान की जानिब से हमला करने की कोशिश के बारे में हम सब वाकफियत रखते हैं। ताहम ज़हीराबाद के दौरे पर रहने वाले मार मालन्ना की तरफ से तेलंगाना जागृति सदर BRS MLC की कविता पर किए गए मुनासिब तबसरे के खिलाफ ये हमला होने के बारे में बताया गया है। बरोज़े हफ्ता ज़हीराबाद के पास मुनक़िदा BC प्रोग्राम में 3 मार मल्लन्ना ने MLC की कविता पर मुनासिब तबसरा करने के बायस तनाज़ु होने के इतला मौसूल हुई है। इस नामुनासिब तबसरे के मद्देनजर तेलंगाना जागृति कारकुनान ने मल्लन्ना दफ्तर पर हमला करने की कोशिश करने की इतला मिली है। ताहम मार मल्लन्ना इन पर किए गए नामुनासिब तबसरे के खिलाफ MLC की कविता की जानिब से लिए गए फैसले के मुताबिक वो आज सापैर कानून साज कौंसिल चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी के क़याम गाह पर पहुँचते हुए 3 मार मल्लन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बारे में पार्टी ज़राई की जानिब से बताया गया है। रियासत के किसानों को महकमे मौसमियत ने खुशखबरी सुनाई। शुमाली मशरक़ी खलीजी बंगाल में सतही गिरत बन गई है, जिसकी वजह से मानसून बहते हुए आने वाले 3 दिनों में तेलंगाना में हल्की सी दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। मुख्तलिफ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गिरज चमक और तेज हवाएं चलेगी। महकमे मौसमियत ने लोगों को होशियार चौकस रहने की ताकीद की। इस हद तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरिसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयकृष्णा, भोपाल, मुलुगु, कोतागुडम, नालगोंडा, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकोंडा, संगारेड्डी, हैदराबाद, कामारेड्डी, मेदक व दीगर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दरिया असना बालाई इलाकों में बारिश की वजह से तेलुगु रियासतों में वाक़ई आपाशी प्रोजेक्ट ज़ख़ीरे आब में इजाफा है, जिससे कुछ प्रोजेक्ट के गेटों को उठाकर निचली सतह में पानी का अखराज किया जा रहा है। गोदावरी, कृष्णा दरिया वाक़ई तमाम प्रोजेक्टों में पानी की सतह आब में इजाफा हुआ है। इससे आपाशी के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। BC तबके के लिए 42% तोफ़ुज़ात फराहम करने के बाद CM रेवंत रेड्डी आर्मर हल्का कांग्रेस इंचार्ज विनय कुमार की तस्वीर को माकलूर कांग्रेस क़ायदीन ने दूध से नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। माकलूर मंडल के मराकज़ पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर डॉक्टर रवि प्रकाश के ज़ेर एहतमाम कांग्रेस हुकूमत BC तबके के लिए 42% तोफ़ुज़ात का निफाज अमल में लाने के लिए इक़दाम करने के बाद आज कांग्रेस क़ायदीन ने CM रेवंत रेड्डी आर्मर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय कुमार की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इज़हार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन B अशोक, वेंकटेश्वर राव, गंगाधर, भास्कर व दीगर ने शिरकत की। గురువారం నాడు ఈ యొక్క BC రిజర్వేషన్ 42% నియమించబడ్డది। దీని ఆ రోజు భారత్ జోడో యాత్ర రాహుల్ గాంధీ రఘునాథుడైనటువంటి వారు ఆ దేశంలో అనేకసార్లు గుర్తించి ఆ యాత్ర గురించి ఇది అనేకులకు బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతుందని ఎదిరించి ఆ రాజు ఆజ్ఞాడుకున్నటువంటి ఆదేశాల మేరకు ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆలోచించి ఇది మా యొక్క నాయకుడు చెప్తున్నటువంటి విధానం మనం పాటించాలని ఉద్దేశం నెరవేరాలని మొన్న మంత్రులందరినీ ఒప్పించి మెప్పించి మంత్రివర్గంలో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ ఈ వచ్చే స్థానిక సంస్థల్లో సర్పంచులు కానీ ఎంపీడీసీలు కానీ జడ్పీడీసీల జెండా బీసీలే ఎదగాలని ఆయన మంత్రులందరూ ఏకతాటిగా ఒక్కతాటిగా బీసీలను ఐక్యమత్యం చేద్దాం. ఇన్ని రోజులు గొర్రెలకు బర్రెలకు ఎన్నో వాటికే వీళ్ళు స్థాపితమైన రాజకీయంగా ఎదుగుద్దామని బీసీలకు ఒక ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ 29 రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రం చేయని ప్రభుత్వం మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దమ్మున్న ముఖ్యమంత్రి మనకు 42% కలిగించేందుకు వాళ్లకు పాదాభివందనం తెలియజేస్తూ
कामारेड्डी हल्का बीरपुर मंडल के भगीरथी पल्ली देहात में मुनक़िद बोनाल जुलूस में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने की शिरकत। कामारेड्डी हल्का बीरकुल मंडल भगीरथापल्ली देहात में मुनक़िदा बोनाल जुलूस में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने शिरकत की। बाद अज़ा इन्होंने ख़वातीन से मुखातिब होकर प्रजा पालना के बारे में आगाही हासिल की और कहा कि बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत पाबंद अहद होने का इजहार किया। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्ख़ियों पर। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद बोनाल गांव की ईद का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कामारेड्डी बोनाल तक़रीब में शिरकत करते हुए बिरादरान को दी मुबारकबाद। MLC 3 मार मालन्ना दफ्तर पर जागृति क़ायदीन की जानिब से हमला करने का वाक़या सनसनीखेज़ बन गया। निज़ामाबाद गांव की ईद के लिए किए गए इंतजामात का CP साई चैतन्या ने लिया जायजा। रियासत के किसानों को महकमे मौसमियत ने खुशखबरी सुनाई, आने वाले 3 दिनों तक बारिश होने का इम्कान। मुतनाज़ा फिल्म उदयपुर फाइज मुल्क की सलामती के लिए बड़ा खतरा। जमीयत उलमा अरशद मदनी निर्मल की नफरत अंगेज फिल्म के खिलाफ कलेक्टर और SP को एक तहरीरी याददाश्त की हवाले। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।